Classification of peripheral nerve. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही है आवाज मेरी? एक तो तुम लोग आगे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। जी मैम आ रही है। ठीक है, चलो ठीक। अच्छा बच्चे, हाँ, टुडे विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। लास्ट टाइम थोड़ा सा नेटवर्क में थोड़ा इशू था, इस वजह से जो था वो आप लोगों के साथ ना मैं कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर पाई थी। तो आज इंशाल्लाह जो है वो आई ट्राई टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, जी जी। Okay, students, now we are going to start with the last component of that of the nervous system, and that is the autonomic nervous system. In previous lecture, we had discussed the spinal nerve, dermatome, ठीक है, आपके साथ मैंने presentation जो थी वो भी share कर ली, और आज हमने जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसको डिस्कस करना है। उससे पहले थोड़ा सा जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ दैट ऑफ द cranial nerves. Regarding the functional component of that of the cranial nerve, it includes 4 types of functional component along with that of 3 other types. सबसे पहले जो है वो हम cranial nerve के
जो है वो फंक्शनल स्पाइनल नर्व के जो है वो कंपोनेंट देख लेते हैं, विच इज मेनली पेरिफेरल नर्व, के बाद क्रेनियल नर्व के देखते हैं. All spinal nerves, they are of mixed variety, as I have told you. It is formed by the ventral and dorsal roots, and it have sensory and motor nerve fibers. A typical spinal nerve have got 4 functional means it have general somatic efferent, GSEs को कहेंगे, and general somatic efferent will have the motor fibers supplying skeletal muscles of the body wall and limb. Then general visceral efferent fibers, they will belong to the autonomic nervous system and it will supply muscles and gland. General somatic efferent GSA fibers, they will carry the impulses from skin, proprioceptive impulses from muscles, joints, ligaments, and that of the tendons. Then general visceral afferent nerve fibers, they will carry the visceroceptive impulses from that of visceral organs. These are the functional component of the peripheral nerve. Now, what are the functional component cranial nerve? अब cranial nerve में जो आपके पास functional component होंगे 4 जो हमने explain किए हैं, general visceral afferent, general visceral efferent, तो उसके साथ 3 other components भी होंगे. So in nutshell, this cranial nerve will comprise of the 7 components. Special somatic afferent fibers carry impulses from teleceptors, sensations of vision, hearing, smell, and equilibrium, and special visceral afferent fibers carry sensation of taste. Then special visceral efferent means they are carrying efferent fibers or motor fibers or branchiomotor fibers भी इनको कहते हैं, to the skeletal muscles which are derived from embryonic branchial arches, muscles of jaw, facial expression, pharynx and that of the lips. ठीक है, ये हमारे पास cranial nerves के जो हैं और spinal nerve के various functional components हैं. Now today's topic is autonomic nervous system. Autonomic nervous system, as I had already told you, that it belongs to involuntary type of nervous system, means it is working below the level of the consciousness, like it's controlling your circulation, respiration, digestion, movement of smooth muscles, like in your GIT, contraction of smooth muscle, that is under the control of autonomic nervous system, and the secretion by glands. And the basic purpose of this autonomic nervous system is that it maintains the stable internal environment. Then it works through 2 types of neuron, preganglionic neuron and postganglionic neurons. It have got 2 divisions, parasympathetic and sympathetic division. स्टूडेंट आपने इस लेक्चर को बहुत ज्यादा केयरफुली सुनना है, इट्स वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट. ठीक है, इसमें जो है हर चीज को आप लोगों ने अटेंशन पे करनी है. दिस चार्ट, फ्लो चार्ट, इज शोइंग यू द डिफरेंसेस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन. सिंपैथेटिक डिवीजन, what are its various function? As you people know that it causes dilatation of the pupil. Then it is also causing the inhibition of the flow of the saliva, or it inhibits the secretion. On contrary, parasympathetic क्या कर रहे हैं? It stimulates the secretion of the saliva. ठीक है, sympathetic outflow को हम thoracolumbar outflow भी कहते हैं और parasympathetic outflow को हम craniosacral outflow भी कहते हैं. ठीक है, thoracolumbar हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये thoracic part में और lumbar area में जो है वो कर रही होती है, gray matter of the spinal cord में mainly. और पैरासिम्पैथेटिक को क्रेनियोसेक्युलर इसलिए हम कहते हैं बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम क्रेनियल नर्व गैंग्लियाज एंड देन इट इज लाइंग इन सैक्रल लैटरल ग्रे हॉर्न. ठीक है, ये अभी आगे दोबारा जाके इसको जो है आई रिपीट अगेन एंड अगेन, अभी जस्ट मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता रही हूँ. देन ऑन लंग्स, व्हाट हैपेंस व्हेन सिंपैथेटिक नर्व्स दे आर स्टिमुलेटेड, दे कॉजेस द डायलेटेशन ऑफ द ब्रोंकाई, व्हाइल पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड दे कॉजेस द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकाई. Then sympathetic nerve stimulation will causes inhibition of peristalsis, while parasympathetics they will stimulate the peristalsis. Glycogen, conversion of glycogen to glucose is the main action of sympathetic nervous system stimulation, while stimulation of the and release bile, that is the main function of parasympathetic. Then when sympathetic system is activated, it causes inhibition of the bladder contraction, while parasympathetic causes contraction of the bladder, or it means that it facilitates the micturition, ठीक है, and the urination. Now what is the sympathetic nervous system? Basically this sympathetic outflow, it is known as thoracolumbar outflow. ठीक है, sympathetic outflow को हम thoracolumbar outflow कहते हैं. It is made up of preganglionic and pre and paravertebral ganglionotic chain, and these ganglia they are forming the sympathetic ganglionotic chain, means they are lying on the sides of vertebral column.
प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक चेन जो है साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम लाई कर रही होती है, पैरा जो है वो उसके अराउंड लाई कर रही होती है. सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट इज कंप्राइजिंग ऑफ विच इज thoracolumbar सिस्टम is comprising of pre and paravertebral ganglion chain. Now, what are these ganglia or sympathetic ganglia? How many ganglia are there? 3 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, and 5 sacral ganglion. Sympathetic ganglion, these are known as. Okay. अच्छा जी, उसके बाद अब हम देखते हैं कि अब इनके और salient features क्या हैं. The sympathetic trunk or sympathetic chain, as I have told you, that it is present in the form of prevertebral and paravertebral ganglion. It is extending throughout the length of the vertebral column. In the neck, these ganglia, they are lying anterior to the transverse processes of cervical vertebra. In the thorax, where these vertebrae are present, anterior to the heads of the ribs or on the sides of the vertebral bodies. In the abdomen, they are anterolateral to the sides of bodies of lumbar vertebra. And in pelvis, they are anterior to the sacrum. Below trunks, the two ends are joined together to form the ganglion impar ganglion इनको कहते हैं, और ganglion impar. अच्छा, दोबारा अब हम देखते हैं what is the sympathetic nervous system. It is mainly a thoracolumbar outflow. Thoracolumbar outflow हम इसको क्यों कहें? Because the cell bodies of preganglionic neuron, they are located in lateral gray of all thoracic and upper 2 to 3 lumbar segments of the spinal cord. That is why this sympathetic outflow, it is known as thoracolumbar outflow. और कौन-कौन से segments में है? It is located in lateral gray horn of all thoracic and upper 2 to 3 segments of the spinal cord, T1 to L2. It leaves the spinal nerve as white rami, myelinated communicants. ठीक है. अब इसने जो है वो white rami, देखो आप पीछे ये जो है white ramus, it is rising of myelinated communicants. Then they will extend from spinal nerve to paravertebral ganglion. ठीक है, यहाँ पे आप देखो spinal nerve से they are going to that of the paravertebral ganglion, and each sympathetic trunk is extending from first cervical vertebra to the tip of the coccyx. Is it, students? ये समझ आ गया? Now, the fibers from the sympathetic trunk, they will have 3 destination, or they can have. जी मैम, ये पैरा गैंग्लियन वाला नहीं समझाया. बच्चे इसको आप गौर से सुनो, मैंने 2-3 दफा रिवाइज किया, जरा कंसंट्रेशन से सुनो, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है. ये मैं आपको सिंपल है कि सिंपैथेटिक चेन जो है वो प्री और पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन की फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, प्री और पैरावर्टिब्रल मतलब प्री जो है दे आर अराउंड द वर्टिब्रा, और पैरा जो है वो उसकी विसिनिटी में है. ओके, और वो पैरा वाले कौन से हैं हमारे पास? दे आर लाइंग मोस्टली क्लोज टू द विसिनिटी ऑफ द विस्ट्रास, और प्री जो है आपके पास जस्ट अराउंड दैट ऑफ द वर्टिब्रास हैं. अब समझ आ गया पॉइंट? और ये हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रास से लेके जो है वो सैक्रल वर्टिब्रास तक जो है वो हमारे पास सिंपैथेटिक चेन एग्जिस्ट कर रही है. और किस फॉर्म में है? प्री एंड पैरावर्टिब्रल गैंग्लियोनोटिक चेन. अब समझ ये? अच्छा, अब हम ठीक है, अब ध्यान से सुनना. मैं ये पहले कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसकी आप लोगों ने ना ध्यान फिजिकल मेंटली प्रेजेंट होके सुनो. अच्छा, अब वहां से हमारा जो है वो वेंट्रल हॉर्न से स्पाइनल नर्व जो है वो इमर्ज हो गई. गैंग्लियन से इमर्ज होने के बाद हमारे पास इसकी 3 टाइप ऑफ डेस्टिनेशन हो सकती हैं. वो डेस्टिनेशन क्या होगी? या तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है सिनैप्स कर जाएंगे गैंग्लियन में. ठीक है, either these fibers they will pass up or down. ठीक है, या ये ऊपर चले जाएंगे या नीचे आ जाएंगे, किसी सिंपैथेटिक चेन के साथ सिनैप्स कर जाएंगे. थर्ड डेस्टिनेशन क्या है? that they can pass through the ganglia without any synapses. फर्स्ट डेस्टिनेशन क्या थी? गैंग्लिया में जाके उन्हें सिनैप्स कर लिया. ये ग्रे रेमाई जो हमारे पास स्पाइनल नर्व से ग्रे रेमाई कम्युनिकेंसीज, उसके बाद उन्होंने क्या किया? गैंग्लियन में जाना है. अब इनकी जो है वो 3 डेस्टिनेशन है. जैसे ग्रे रेमाई आया एंड इट इज अ माइलिनेटेड वन, ईदर इट विल सिनैप्स इन द गैंग्लिया, और सेकेंड डेस्टिनेशन क्या थी? इट विल गो अप और डाउन, और थर्ड डेस्टिनेशन इट विल गो टू कंट्रोल गैंग्लिया फॉर सिनैप्सिस. ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? 3 डेस्टिनेशन वी हैव डिस्कस्ड. या तो गैंग्लियन सिनैप्स कर जाएगा, या फिर ये कि इट विल पास अपवर्ड टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ सिंपैथेटिक with postganglionic neuron, and
Third destination, it will pass through the ganglion without synapses and leave the chain as splanchnic. जो गैंग्लिया में सिनेप्स नहीं करेंगे वो क्या बना लेंगे, स्प्लैंक्निक नर्व बना लेंगे, and with a post ganglionic neuron inside the paravertebral ganglion, और या फिर ये एड्रीनल मेडुला में जाके इनका सिनेप्स हो जाएगा. ओके अच्छा, अब जो ब्रांचेस सिनेप्स नहीं कर रही वो क्या बनाएंगी, स्प्लैंक्निक नर्व्स या विसल ब्रांचेस बनाएंगी. वो कौन कौन सी हो सकती हैं, दे कैन फॉर्म द कार्डिक ब्रांचेस जो हमारे पास 3 सर्वाइकल और अपर थोरेसिक से आ रही हैं. ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व्स कैसे बन रही हैं, T5 to T9, इनकी रूट वैल्यूज आपने याद रखनी है. लेसर स्प्लैंक्निक नर्व्स T10 to T11 आएंगी, लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व्स T12, एंड देन दे कैन आल्सो फॉर्म प्लेक्सेस, रीनल प्लेक्सेस, सुप्रारीनल मेडलरी प्लेक्सेस, एंड लेसर जो है वो सीलिक प्लेक्सेस में जाएंगी और लीस्ट जो है वो आपके पास रिफ्लेक्सेस में आ जाएंगी. ठीक है. अच्छा जी, अब हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आ रहे हैं. पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स मैंने आपको पहले बताया, दे विल बी लोकेटेड इन पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया ऑफ द सिंपैथेटिक चेन, मींस व्हिच इज लाइंग विद इन द विसिनिटी ऑफ दैट ऑफ ऑर्गन. दे में पास डायरेक्टली, अब ऑर्गन के पास है तो क्या होगा, दे में पास डायरेक्टली टू द अफेक्टर ऑर्गन्स हार्ट और लंग, और रिटर्न टू द स्पाइनल नर्व बाय वे ऑफ ग्रे रिमाइक्यूमिनिकेंटीज जो कि अनमाइलिनेटेड हैं, और इनको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स कहेंगे. अच्छा, अब ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो हैं क्या करेंगे, दे विल इनर्वेट स्वेट ग्लैंड्स जो सिंपैथेटिक नर्व्स के स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड इरेक्टर पिलाई मसल्स. ठीक है. many post ganglionic axons from cervical sympathetic ganglia, they will also form plexus over the blood vessels of the neck. ठीक है. ये जब हेड एंड नेक पढ़ोगे तो उसमें आप लोग ये प्लेक्सिस पढ़ेंगे. सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया जो है दे कैन आल्सो फॉर्म प्लेक्सिस ओवर द मेजर ब्लड वेसल्स ऑफ द नेक. देन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द ब्रांचेस ऑफ द ब्लड वेसल्स, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स दे विल रीच द अफेक्टर्स organs in the head region like dilator muscles of the pupil and glands in the head. ये हेड एंड नेक जब आप लोग बच्चे पढ़ोगे ना उसमें ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी. अच्छा जी, उसके बाद अब हमें देखना है कि हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक को हमने क्या कहा था, इट इज थोरैकोलम्बर. पैरासिम्पैथेटिक इज क्रेनियोसैक्रल. अब पैरासिम्पैथेटिक जो है इसमें आपके पास क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है. इट हैव प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स. सिंपैथेटिक में भी प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक थे, पैरासिम्पैथेटिक में भी आपके पास प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक हैं. डिफरेंसेस हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो हैं दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम क्रेनियल नर्व न्यूक्लिया एंड दे आर लाइंग इन लिटिल ग्रे हॉर्न ऑफ, also they are lying in lateral gray horn sacral segment of the spinal cord. The preganglionic axons, they will leave nerve with which they are associated and they will end in the ganglia contain cell bodies of postganglionic neurons. ठीक है. Ganglia are located close to the organ which they innervate or within the walls of the organs. Parasympathetic craniosacral है. यहाँ पे हमारे पास preganglionic fibers जो हैं वो कहाँ से आएंगे, they will arise from cranial nerve nuclei along with that of sacral जो आपके पास segment of spinal cord है वहां से आएंगे. अब हमारे पास कौन कौन से parasympathetic cranial nerve nuclei हैं. These are present in the third cranial nerve जो कि oculomotor है, 7th facial, 9th glossopharyngeal and 10th vagus. The preganglionic parasympathetic nerve fibers, first 3 of the cranial nerves, they end by synapses by postganglionic neurons. लेकिन जो आपके पास वेगस नर्व है उस वो क्या करती है, that go beyond the region of the head and it will supply up to splenic flexure तक ये supply करती है. Means medial 2/3 और lateral 1/3 जो जंक्शन है आपके पास ट्रांसवर्स कोलोन का वहां तक वेगस की सप्लाई जाती है. अब ये वाली जो लाइन लिखी हुई है, the preganglionic parasympathetic fibers of the vagus nerve that goes beyond the head region to synapses postganglionic neurons in the ganglia present in the walls of the viscera, heart, lung, stomach, intestine to the splenic flexure. ये इस लाइन का ये मतलब है जो मैंने आपको बताया. अब sacral parasympathetic outflow क्या है, it will leave the spinal cord as ventral of 3rd and 4th sacral spinal nerve, और ये किस फॉर्म में होंगी, pelvic splanchnic nerve और nervi adjuncens. पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन फाइबर्स जो हैं बस जो सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो है वो कहाँ कहाँ सप्लाई लेंगे, दे विल सप्लाई लोअर लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि स्प्लीनिक फ्लेक्चर तक तो आपके पास आ गई किसकी नर्व सप्लाई वेगस. वहां से ऑनवर्ड जो है वो आपके पास
ये नर्वी अर्जेंटीज पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व सप्लाई करेंगे। और वो कौन कौन से एरियाज को सप्लाई करेंगे? डिसेंडिंग कोलोन, सेगमेंट कोलोन, रेक्टम, एनल कैनाल, यूट्रस, योर जेनिटेलिया, स्फिंक्टर्स, मसल, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, अब हमने देखने हैं कौन कौन से पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियंस हैं। मैंने आपको उनके नाम बताए हैं। नाउ आई एम इंडिविजुअली डिस्क्राइबिंग which parasympathetic ganglias are present. These are ciliary ganglion related with the third cranial nerve, pterygopalatine ganglion that is related with that of your seventh, along with that some mandibular ganglion and otic ganglion. अब ganglion है क्या? Basically these are collection of postganglionic cell bodies which will receive preganglionic parasympathetic fibers from cranial nerve through motor root of a ganglion. Each ganglion have got sympathetic and sensory root also. ठीक है, एक तो इनमें preganglionic fibers आ रहे हैं, उसके अलावा इनमें जो है वो sympathetic और sensory root. And fibers in the sympathetic and motor root, they will have no functional connection with the ganglion. They will pass through uninterrupted and distributed again through the branches of ganglion. Ciliary ganglion देखते हैं अब क्या है. It is located in the orbit. It receives preganglionic parasympathetic fibers via third cranial nerve, whose cell bodies they are lying in the midbrain में lie कर रहा है इसका. Preganglionic fiber है वहां से arise करेंगे और synapse कर जाएंगे ciliary ganglion में, which is lying in the orbit. उसके बाद postganglionic fibers ganglion से arise करेंगे and they will supply to the eyeball. आइए किससे ये को सप्लाई करेंगे? दे विल सप्लाई सिल्वरी मसल्स एंड कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली मसल्स. ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ. सिल्वरी गैंग्लियन लोकेटेड, इसकी लोकेशन क्या है? इट इज लोकेटेड इन द ऑर्बिट. प्रीगैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो थर्ड क्रेनियल नर्व के हैं मिड ब्रेन से अराइज करेंगे एंड दे विल रिजाइड इन द गैंग्लियन. पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आफ्टर सिनेप्सिस इन द गैंग्लियन विल रीच द आईबॉल एंड दे विल सप्लाई सिल्वरी मसल्स एंड कंस्ट्रिक्टर प्यूपिलरी मसल्स. उसके बाद हमारे पास सेकंड गैंग्लियन है टेरिकोपैलेटाइन, व्हिच इज रिलेटेड विद द सेवेंथ cranial nerve. टेरिकोपैलेटाइन एंड गैंग्लियन, टेरिकोपैलेटाइन फोसा ऑफ स्कल में है. ये भी आप हेड एंड नेक में पढ़ोगे. अभी जस्ट मैं आपको इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा. इट रिसीव्स प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स थ्रू ब्रांचेस ऑफ सेवेंथ cranial nerve और ये superior salivatory न्यूक्लियस होता है फेशियल नर्व का पॉन्स में, वहां से प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स आएंगे. पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्सॉन गैंग्लियन में आके सिनेप्स करेंगे और वहां से ब्रांचेस किसको सप्लाई होती हैं? लैक्रिमल ग्लैंड को. ग्लैंड्स ऑफ नोज, नेसोफेरिंग्स, पेरानियल एयर, साइनसेस और पैलेट को टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन जो है वो सप्लाई करेगा. ठीक है, अच्छा जी. उसके बाद हमारे पास थर्ड आ जाता है सबमैंडिबुलर गैंग्लियन. सबमैंडिबुलर गैंग्लियन जो है आपके पास सबमैंडिबुलर रीजन में प्रेजेंट होता है. इसको प्रीगैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स फेशियल नर्व ही से आएंगे, लेकिन फेशियल नर्व की किस ब्रांच के थ्रू? कॉर्डा टेम्पररी इसकी ब्रांच है जो कि सेंसेशन ऑफ टेस्ट होती है. और इसकी सेल बॉडीज हमारे पास कहाँ है? सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस. व्हेन यू पीपल विल स्टडी द न्यूरो, ये सारी चीजें तुम लोगों को बहुत क्लियर हो जाएंगी. आई नो एट दिस स्टेज दीज आर अ बिट डिफिकल्ट बट देयर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड. So you have to understand it. ये इसकी just मैं brief description दे रही हूँ. हेड एंड नेक में आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ोगे. Don't you worry at all about these things. ठीक है? I know these are a little bit difficult at your level, but these are parts of the nervous system. हेड एंड नेक जब पढ़ोगे इंडिया में उस वक्त बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए इसके लिए you people don't need to worry. अच्छा जी, अब सबमैंडिबुलर गैंग्लियन जो है वो कहाँ है? सबमैंडिबुलर रीजन में. इट रिसीव्स प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स वाया कॉर्डा टेम्पररी ब्रांच फेशियल नर्व और उसके बाद इसकी सेल बॉडीज कहाँ पे हैं? सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस ऑफ पॉन्स. पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम सबमैंडिबुलर गैंग्लियन विल इनर्वेट सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड. ठीक है, अच्छा जी. उसके बाद फोर्थ हमारे पास गैंग्लियन आ जाता है, दैट इज द ऑटिक गैंग्लियन. और ये गैंग्लियन इंफ्राटेम्पोरल फोसा में है. मेनली ये पैरोटिड ग्लैंड को नर्व दे रहा है. प्रीगैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स नाइन्थ क्रेनियल नर्व ग्लॉसोफेरेंजियल के थ्रू आएंगे, whose cell bodies is located in inferior salivatory nucleus of medulla oblongata. ठीक है, अच्छा जी. इस वाली पिक्चर को देखो, इसमें सारे क्रेनियोसेंट्रल आउटफ्लो दिखाई गई है. This picture is showing you the repetition of all which I have told. इसमें आप देखो सिलियरी गैंग्लियन को प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं? मिड ब्रेन से. ठीक है, उसके बाद शॉर्ट सिलियरी नर्व्स जो हैं वो सिलियरी मसल्स और स्फिंक्टर प्यूपिलरी मसल्स को सप्लाई करनी है और कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल होती है. इसी तरह क्रेनियल नर्व का जो है था आपके पास इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस पॉन्स में पड़ा हुआ है, यहाँ से प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स आ रहे हैं
और गैंग्लियन में सिनेप्स हो रहा है, और उसके बाद ये आपके पास जो है लैक्रिमल ग्लैंड और जो है पैलेटाइन गैंग्लियन की ये लैक्रिमल ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ नोज, नेसोफेरिंग्स और लेरिंग्स इसको सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जो था पास सबमैंडिबुलर गैंग्लियन को भी जो है वो स्पीरोसैलिवेटरी न्यूक्लियस के थ्रू आ रहे हैं और सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स को सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ऑटिक गैंग्लियन जो है वो नाइन्थ क्रेनियल नर्व के साथ रिलेटेड है और उसको जो है वो ब्रांचेस सारी की सारी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 10 वॉगस जो है वो आपके पास मेडल्ला में उसका मेन न्यूक्लियस है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आ रहे हैं और उसके बाद फिर ये कार्डिक प्लेक्सिस पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के जो है ये आपके पास हार्ट को सप्लाई करेंगे, लंग को, और यहाँ तक ये देखो दिस इज द फ्रैक्शन जो कि मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 बनता है ट्रांसवर्स कोलन। और उसके बियॉन्ड जितनी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व इन द फॉर्म ऑफ हाइपोक्लेरिक प्लेक्सिस उसके थ्रू जाती है, डिसेंडिंग कोलोन और उसके बाद फैट कोलोन, रेक्टम, एनल कैनाल, योर यूरिनरी ब्लैडर, योर जेनिटेलिया, यूट्रस, इन सब को बाकी सारी सप्लाई S2, 3, 4 पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स के थ्रू जा रही है। दिस इज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैरासिम्पैथेटिक व्हिच इज क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। समझ आ रही है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद अब हम देखना है कि डिफरेंसेस बिटवीन प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पे आप लोग देखो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इन केस ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक वन they have got long pre-axons while post-ganglionic neurons are short. Why they are short? Because they are located close to the vicinity of the that organ or structure which are supplying. अब sympathetic में opposite है, वहाँ पे pre-ganglionic short है, post-ganglionic जो है वो हमारे पास long होते हैं. This is also one of the difference in pre and post-ganglionic neurons. अच्छा, उसके बाद हम function of ANS देखते हैं. Autonomic system, sympathetic, parasympathetic. This is just the repetition of the lecture जो मैंने स्टार्ट में बताया था. सिंपैथेटिक क्या कर रहे हैं? हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं. ऑल दीज आर रिटन इन योर बुक्स, ये टेबल की बुक में भी है. पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को डिक्रीज कर रहा है. लंग्स पे वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन, ये वाइवा में एमसीक्यूज में पूछा जाता है, स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज हो जाते हैं. सिंपैथेटिक क्या कर रहे हैं? ब्रोंकोडाइलेशन कर रहे हैं, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं. ओके, अब जीआईटी में भी बहुत मेन एक्शन है. जीआईटी में पैरासिम्पैथेटिक मोटिलिटी इंक्रीज करेंगे, ग्लैंड्स की स्फिंक्टर्स को रिलैक्स करेंगे और इंक्रीज सिक्रीशन, और पेरिस्टाल्सिस भी इंक्रीज होती है. जब सिंपैथेटिक क्या करेगा? व्हेन इट विल एक्ट, इट विल कॉजेस डिक्रीज इन द मोटिलिटी, देन स्फिंक्टर की कंट्रैक्शन जो है उसको करेगा एंड डिक्रीज सिक्रीशन. ऑपोजिट है. अच्छा जी, सैलिवरी ग्लैंड्स में पैरासिम्पैथेटिक्स में मैंने बताया उन्होंने स्टिमुलेशन इंक्रीज करनी है तो सैलिवरी ग्लैंड्स की भी इंक्रीज हो जाएगी, सिंपैथेटिक उसकी सिक्रीशन को डिक्रीज करेगा. इसी तरह आप देखो कि स्वेट ग्लैंड्स, पैरासिम्पैथेटिक स्वेटिंग जो है वो ओनली palm but copious sweating when you are tense or especially during exam you see that sympathetic system is activated and you people can see the over sweating of your palm. Okay? इसी तरह pupillary dilation हो जाती है जब सिंपैथेटिक होते हैं. पीपल आर इन अ कंडीशन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट. और पैरासिम्पैथेटिक क्या करते हैं? प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन कराते हैं और थिकनिंग ऑफ लेंस कराते हैं. ओके, अच्छा, अभी हमने देखा था जो पैरासिम्पैथेटिक सिलरी गैंग्लियन वो कंस्ट्रक्टर प्यूपिली और शॉर्ट सिलरी मसल्स को सप्लाई कर रहा है और फिर थ्रू क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल कर रहा है. इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर है उसकी कंट्रैक्शन करा रहा है और रिलैक्सेशन, स्फिंक्टर्स की रिलैक्सेशन कर रहा है. सो मिक्चुरेशन इज अ parasympathetic act. When sympathetic when they will causes relaxation of the bladder and contraction of the sphincters. इसमें आप again this is just the repetition of today's lecture. Sympathetic thoracolumbar और parasympathetic craniosacral outflow. अच्छा, sympathetic prevertebral paravertebral ganglion में है और post ganglionic इनके sympathetic के long हैं जबकि parasympathetic के short हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आप देखो कि हमारे पास मेन जो पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट है एनाबॉलिक, इट इज एनर्जी स्पेयरिंग. इसको हम सिस्टम ऑफ रेस्ट और डाइजेस्ट भी कहते हैं. जबकि हमारे पास सिंपैथेटिक का क्या फंक्शन है? इट इज मेनली कैटाबॉलिक. इट इज एनर्जी कंज्यूमिंग. like when you people are running, like when you people are doing the exam, what will happen? That your energy is consumed.
third system, that is the enteric nervous system. It consists of two nerve plexus found in the tubular part of the GIT. One found in the submucosa, submucosal plexus. ये भी आप लोग सेकेंड ईयर में जब GIT पढ़ोगे तो उसमें क्लियर जाएगा, अभी जस्ट इसकी ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन है. एंड सेकेंड इन द मस्कुलरिस सिस्टर्ना, and together it is known as enteric nervous system, and functionally it is modulated by sympathetic and parasympathetic nervous system. It is the third division of autonomic nervous system. Okay, जो हमारे पास enteric nervous system भी है. So this was today's lecture. Here we have got the some MCQs. बच्चे इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये स्लाइड भी शेयर कर लेती हूँ. आई होप कि आपको जो है समझ आ गया होगा लेक्चर.